Edge Talks. Unfiltered. Unstoppable. ठीक है, आप फ़ोन करते हो और आप इतने क्लोज फ्रेंड्स बनते हो, आप बर्थडेज पे आ रहे हो, आप साथ में हर महीने आप मिल रहे हो इन किटी थिंग्स। मैंने किनारा कर लिया था फिर कि मुझे अब अपने साथ रहना, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, ट्रस्ट मी। वरना मैं शायद किटी आंटी सी बन के रह जाती, उसी गॉसिप्स में रह जाती। एंड आई बिलीव कि वही सच है, सच्चाई भी वही है। ये जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, दिस इज ऑल फेक। लोग किसी के साथ ट्रैवल करते हैं, उसकी बिजनेस क्लास में जाते जाते बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, पीछे ब्लैंकेट्स गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, बट वो वहाँ पे पिक्चर दिखाएंगे कि हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके आए हैं। आप एक छोटी सी चीज भी इतना इलेबोरेट करके दिखाते हो, बिकॉज मैं देखती हूँ लोगों के अंदर एक प्रेशर हो गया है कि यार हमको अब क्या कंटेंट सोचे, अब क्या करे, अब नया क्या दिखाए जिससे और व्यूअर्स मिले और फॉलोअर्स मिले। मैं जो करती हूँ अपनी मस्ती के लिए करती हूँ, और वो लोगों को इतना पसंद आता है, लोग लाइक करते हैं। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। अब एक लेडी है, वो घर जाके अपने पति से लड़ती है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी ये वाला बैग चाहिए, मुझे भी ये वाली हील्स चाहिए। एंड दैट हस्बैंड माइट बी हैव दैट मेंटालिटी कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ, तो माई प्रायोरिटी इट्स डिफरेंट. Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of our podcast on Edge Talks. And today we have another special guest. Her name is Shikha Gulati, and she's a lifestyle and media influencer. So, Shikha, welcome to the show. Thank you so much. So, Shikha, you know, nowadays we have a lot of different personalities from a lot of different arenas, but we have a lot of social media influencers nowadays. A lot of people are venturing into that. Right. बहुत लोग अपना career बना रहे हैं. Yes, right. yes, Every exactly. other person, So yeah. when I started my career, ऐसा Instagram पे कुछ नहीं था, तो it was very easy to be there and be successful. Thank God for that. But आजकल इतना competition भी है, everything. Right. तो आपको क्या inspiration मिली? किसने inspire किया कि okay, now I want to get into this field and इसको मैं career बनाना चाहती हूँ. So honestly, Aman, I never thought of being into this field. It just happened. There's a long story behind this. To be very honest with you, my mother, she got expired, and at that time the TikTok was very much in fashion. Yeah. Every other person is on TikTok, and I don't know, somehow शायद उस चीज़ से निकलने के लिए, उस सौरों से निकलने के लिए, उस लॉस से निकलने के लिए, आई जस्ट indulge myself in something, and I just start making TikTok reels and TikTok. At that time it wasn't reel, it was TikTok. So I start making those TikToks, and people start loving it. I used to get so many likes. I have 1 million of followers, millions of followers on TikTok. Yeah. Wow. So when it तो got TikTok banned, तो बैन हो गया. टिकटॉक बैन हो गया, अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक बैन हो गया. एंड टिकटॉक पे आने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था. आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड, आई लव टू सोशलाइट, आई लव टू मीट पीपल, आई लव टू कनेक्ट विद पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ किटी पार्टीज एंड एवरीथिंग बिफोर माई मदर. एंड आई लव मैं हमेशा अपनी बर्थडे पार्टीज थ्रो करती थी, एंड आई हैव अ ह्यूज क्राउड, like 100+ girls are there always in my birthday parties. So you're a very social person. I was. Now I'm not. As in I now you're was. not. Now I'm not. So I was very social, and when my mother got expired, there was a very handful of people out there at that time. And that very moment I realized कि this is very fake. और तब मैंने अपने आप को अपने साथ, जिसको कहते हैं ना सेल्फ केयर करना या सेल्फ लव करना, at that very time I start concentrating on my health. I start concentrating on myself, my progress as a person. So that shows you that people are ready to party with you because 24/7 they're ready to Yes, party with you when everyone. everything's well in your life. Right. But if you're sick or your family member sick, they're like, अच्छा, we sympathize with you, but किसी की life किसी के लिए रुकती नहीं है, And they're रुकनी भी नहीं Yeah, चाहिए, but yeah. at least इतनी ऑडेसिटी, इतनी एक कर्टसी दिखा दे बंदा कि ठीक है, आप फ़ोन करते हो और आप इतने क्लोज फ्रेंड्स बनते हो, आप बर्थडेज पे आ रहे हो, आप साथ में हर महीने आप मिल रहे हो इन किटी थिंग्स. बट एट दैट टाइम आई रियलाइज, एंड आई जस्ट वेंट, मैंने किनारा कर लिया था फिर कि मुझे अब अपने साथ रहना, एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, ट्रस्ट मी. वरना मैं शायद किटी आंटी सी बन के रह जाती, उसी गॉसिप्स में रह जाती. फिर जब मैं यहाँ पे निकली, फिर जब आप ऑब्वियसली आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे टिकटॉक था मेरे लिए. अब मुझे होता था यार मैं और अच्छी लगूँ, और अच्छी लगूंगी, और अच्छा करूँगी, और इम्प्रूव करूँगी, और लोग देखेंगे, और मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, आई विल गेट मोर फेम. सो दैट थिंग डेफिनेटली उसने मेरे अंदर बड़ा अच्छा चेंज लाया. आई यूज्ड टू बी 90 kgs,
and then initially I diet, and then I reduced my weight, and then I got 70, Wow. 80, 70. That's commendable. Then the best thing happened to me is gymming. The second best thing happened to me is a gymming thing. जिम के बाद तो मुझे अब जैसे कहते हैं ना एडिक्शन, जैसे लोगों को एडिक्शन होती है ना, सैटरडे है वी हैव टू गो टू द पार्टी. But it's such a feel good, you know, like so many people are like, you know, I'm feeling low and ye hai and wo hai, we are meeting this. I'm like, dude, try going to the gym. Right. It's such a feel good. One day I go to the gym, I feel like, oh my god, I've accomplished something. Right. It's very yeah, good. it's so therapeutic. Right. You know, there's a hormone dopamine. Yes. वो कहते हैं आपका जब आप जिमिंग करते हो एंड व्हेन यू स्वेट एंड व्हेन यू वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, वो चीज़ आपको एक्चुअली अचीव होती है. बिल्कुल. तो राइट, दिस वाज माय टर्निंग पॉइंट. ऑब्वियसली आई लॉस्ट माय मदर, बट एट द वेरी सेम टाइम आई फाउंड माई सेल्फ. मैंने मम्मा को ज़रूर खोया, बट मैंने खुद को उस समय पा लिया, और मुझे समझ आ गई कि अब मुझे अपने लिए एंड द स्मॉल फैमिली विच आई मेड, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी. दैट या Very nice. A lot of changes like that. Like I had a major change in my life, and after that, my perspective towards life has completely changed. Towards people also. Yes. And I realized कि जो आपके दुख में आपके साथ नहीं था, bye bye. Right. Abhi, my friends and most of the friends who were there, who turned up there, they are still with me till date. And trust me, most of them are not socialite. They are not influencers. They have nothing to do with the Instagram thing. एंड आई बिलीव कि वही सच है, सच्चाई भी वही है. ये जो आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, दिस इज ऑल फेक. आई डोंट नो व्हाई पीपल कॉल देम एन इन्फ्लुएंसर. हाउ कम यू कॉल योरसेल्फ इन्फ्लुएंसर? What are you influencing people about the fake purchases you shows on the Instagram, or might be लोग किसी के साथ ट्रैवल करते हैं, उसकी बिजनेस क्लास में जाते जाते बैठ जाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं. अब ये अपनी बोर्डिंग पास की नहीं खिंचवाएंगे. वो क्या करते हैं, जब वो निकल रहे होते हैं फ्लाइट से, तो जो उसके साथ का बंदा होगा, या माइट भी अगर वो वहां से निकल रहे हैं, तो बैग उनके हाथ में दिख रहा होगा, पीछे ब्लैंकेट्स गिरे हुए नजर आ रहे होंगे, बट वो वहाँ पे पिक्चर दिखाएंगे कि हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करके आए हैं. आप एक छोटी सी चीज भी इतना इलैबोरेट करके दिखाते हो, अगर आप गए हो तो उस चीज को भी इलैबोरेट करके दिखाओगे. सो पीपल आर नॉट स्टूपिड, वेरी इजली दे कैन जज दीज थिंग्स. एंड मुझे लगता है ऐसे करके आप जो अपना एक मेंटेन्ड जो आपने बना रखा है, उसको भी खराब कर देते हो. ऑब्वियसली पीपल मेक अ सेकंड थॉट कि यार ये दिखाने का कुछ और है, हाथी के दांत, और वो कहते हैं खाने के कुछ और है, तो वो सब समझ आ जाता है. तो शिखा, initially, you know, since it's a very competitive world and people are jealous of everything, and God knows, I know it, like how it's not about Instagram right now. Like 20 years back when I participated in Glad Rags, trust me, the girls were so mean to sabotage me. I would be on the stage answering my question, and they cut my dress with a scissor. Oh God. And makeup बिखार दिया, मेरी सैंडल्स छुपा दिए. So ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे challenges को आपने कैसे फेस किया initially? Did you face anything? To be very frank, I am in with everyone's good books. I never had any conflicts with anyone, never any bad terms with anyone. Might be they have their own reason to don't like me, some jealousy factor, or might be that's what I've said ना. वो लोग वहीं रह गए हैं, मैं खुद. और मैं जब initially ये start किया था this reels making, they used to make fun of me. They were like, तू ही कर सकती है ये सब यार, हम नहीं कर सकते. We can't do all this. They kind of look down upon you. Yeah, right. They used to give me such looks. And see, आज मैं आई हूँ यहाँ पॉडकास्ट पे आपके साथ हूँ, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, we were talking and they were still and they will watch this. So of course yes, मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल एकदम साइड किया, और मैंने अपने आप को लाइमलाइट में रखा हमेशा. I always make sure कि मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है मुझे वो करनी है. तो इन्फ्लुएंसर बनने की जर्नी में आपने क्या इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया, एंड आपकी पहली लाइफ कैसी थी, और अब हाउ हैज इट चेंज आफ्टर बिकमिंग एन इन्फ्लुएंसर? I have to thank you for this question. Why? Because मेरी बहुत ही slow morning होती है. I have no pressure in my mind कि every morning I have to get up, I have to make some content. I am very natural, and might be that's the reason that people are so much connecting with me. Because मैं देखती हूँ लोगों के अंदर एक प्रेशर हो गया है कि यार हमको अब क्या कंटेंट सोचे, अब क्या करे, अब नया क्या दिखाए जिससे और व्यूअर्स मिले और फॉलोअर्स मिले. मेरे साथ ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आज मैं रेडी हुई हूँ, if I'll found something good to talk about, I'll make a
यू नो मैं उसकी रील बना दूंगी, कोई फनी रील मिलेगा तो मैं वो बना दूंगी, तो मैं इतना नहीं बॉदर करती. फॉर मी माई प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली अगेन माई सेल्फ केयर. आई नेवर, मैं अपना पीस नहीं खो सकती इन चीज़ों के लिए कि यार मुझे इस आई एम एक्चुअली नॉट इन एनी रेस विद एनी वन. मैं किसी के साथ ना कॉम्पिटिटिव फील करती हूँ, ना मैं किसी के साथ कंपटीशन में हूँ. मैं जो करती हूँ अपनी मस्ती के लिए करती हूँ और वो लोगों को इतना पसंद आता है, लोग लाइक करते हैं. मैंने कोई एफर्ट्स नहीं डाले इन्फ्लुएंसर बनने के लिए. पीपल देमसेल्फ स्टार्ट कॉलिंग मी बिकॉज वाई, ऑफ कोर्स यस, माई हस्बैंड इज ऑलवेज माई गुड प्रोवाइडर. आई यूज टू ट्रेवल अ लॉट. आई लव टू स्पेंड, you know, I enjoy spending money on myself when it comes to health, when it comes to the good gym, good coach, good dresses, good outfits. So people obviously they love this thing, they admire it and वो इस चीज़ से connect कर पाते हैं. Absolutely. So Shikha, you know, as a model, I've done a zillion shows, campaigns. Not every time you relate with a brand. Sometimes it's just the job, it's the money. So आपको क्या लगता है बहुत बारी brands और followers के लिए content बनाते वक्त अपनी असली personality को कितना आप maintain कर पाते हो? I am very straightforward with this thing because I have seen few people who call themselves a luxurious influencer. ठीक है, and 2 दिन पहले एक ड्रेस एक ही लेबल की किसी और बंदे ने पहनी होती है, 2 दिन बाद ही वो किसी और ने पहनी होती है, एंड ऑन देयर स्पेशल ओकेजन्स, लाइक जो बहुत ज़रूरी होते हैं ओकेजन, दिवाली, करवा चौथ, लाइक दिस मेनी गुड ओकेजन्स. तो मैं नहीं कर सकती. मुझे लगता है कि फर्स्टली आई थिंक किसी का उतरा हुआ पहनना मुझे थोड़ा सा आई एम लिटिल यू नो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम थोड़ा अगेंस्ट दिस. एंड सेकेंडली मैं बहुत क्लियर कट चलती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक आउट एनी ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ दिस. आई एम डूइंग दिस फॉर माई ओन सेक एंड आई हैव एक persona that Shikha have this kind of figure or Shikha has this thing. तो I want to make sure कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं जिसमें जो मैं जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है वो दिखे. तो मैं कुछ भी नहीं पहनती और मेरा पहला उनसे यही रहता है कि either you make some new outfit for me, otherwise I'm okay. if they said कि नहीं यही चीज़ है हमारे पास, आपको यही पहनना पड़ेगा, फलाने ने भी पहना था, ढिमकाने ने भी पहना था, तो मैं उस चीज़ को ऑब्वियसली आई लेट इट गो. इट्स बेटर टू लेट इट गो बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जो मेंटेन कर रखी है ये ना हो मैं कुछ चीज़ों के लिए, एक अच्छे ब्रांड के लिए या कुछ पैसों के लिए वो पहन लूँ और फिर मेरी फॉलोअर्स बोले यार शिखा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, व्हाट शी वोर दैट डे, व्हाई शी वियर दैट डे. Lot of people are doing that. Right. Just because I honestly believe in that as well. Just because आपके free outfit मिली, I cannot look like a Christmas tree for you. Exactly. So मैं तो बिल्कुल नहीं. So आपका पहला experience कैसा था जब आपको किसी ने first time approach किया for a paid collaboration? My experience, monetary टर्म्स से, एक प्रोफेशनल टर्म से काम करने में मैंने कभी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई. अगेन वाई, बिकॉज आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज like I feel good in doing this and I enjoy doing that. Of course yes, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, आप जा रहे हो, आप अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हो कहीं पे फॉर अ शूट माइट बी और फॉर एनीथिंग, तो वी ऑब्वियसली मतलब ये तो सामने वाले को भी पता है कि आपको क्या चीज़ कितना वो, और most of it कि you know from where that person is coming to, what from which family she belongs to and how type of profile she carries. तो वो मतलब बहुत उस चीज़ की, अगर मुझे लगता है कि यार इस चीज़ के लिए मैं इतने संघर्ष करूं और मुझे इस चीज़ का वो मिल रहा है तो ही आई प्रेफर, अदरवाइज अगेन आई से नो. मुझे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि करना ही करना है. So you've told us how you know you were set apart from other influencers. आप जबरदस्ती नहीं करते हो to create content. So you know दूसरे influencers की jealousy obviously दिखती है. So how do you feel about that जब वो आपको समझ में आता है कि oh my god they're jealous? Influencers they might. और क्या आप jealous होते हैं उनसे, उनका वर्क देख के? मैं जेलस नहीं होती, यू नो बट मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ. द ओनली ड्रॉबैक आई हैव इज दैट आई एम अ वेरी यू नो आई लेट आउल, मतलब नाइट आउल हूँ मैं, रात को लेट सोती हूँ. आई एम नॉट अर्ली बर्ड. तो मुझे उनको देख के लगता है यार पीपल आर सो फोकस्ड एंड दे आर सो डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स देयर वर्क, वेरी डेडिकेटेड एंड दे आर सो वेल इन लाइक, मतलब वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती है. जेलसी आई वॉन्ट से, बट ऑफकोर्स यस समवेयर आई फील आई लैक यार, मुझे भी टाइमली उठना चाहिए, हर चीज़ को लाइन आउट करना चाहिए, अपने कंटेंट्स को लेके थोड़ा और सीरियस होना चाहिए. तो वो चीज़ मुझे रहती है एंड आई अप्रिशिएट दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट. माइट बी दैट्स द रीजन
they give me boost. Yeah, I should also go ahead with my. I have that skill. I have a good face. I have a good profile. People love watching me. Then why not? I should work more hard on it. So of course we're talking about competition, negativity and all of that. But किसी को positive way में आप किसी influencer को देखती हैं as a you know कि oh my god ये मेरी competitor है. I appreciate only the influencer. Those are actually influencing people for something good. Either it's fitness, either it's health. I literally don't like the content in which people are doing the unboxing of their brands. I don't know what type of influencing they are trying to do with people, and that people who are following them, who are watching them, they might be from middle class, they might be from the mediocre families. And what happened is, even I have seen this. मैंने खुद ये live example देखा है in my neighborhood. That what happened, आप लोग तो ये चीज़ दिखा देते हो, but there are some people like अगर अब एक lady है वो घर जाके अपने पति से लड़ती है, मुझे भी ये चीज़ चाहिए, मुझे भी ये वाला बैग चाहिए, मुझे भी ये वाले heels चाहिए, and that husband might be have that mentality कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ तो my priority it's different. Of course I have to make money, I have to multiply my money, और if I invest, मुझे कहीं ऐसी जगह invest करना है जहाँ पे मुझे कुछ multiplication मिले, either it's a gold or maybe some property. So rather than influencing people about this thing, it's better to influence people about inherent business, inherent properties. And trust me, Aman, those who get so excited with these little things, they have those little things only, because those who have many things, they will never get excited for these little things. अगर आप बड़े से, आप कुछ लोग मैंने देखे हैं जो जाते हैं इतने करोड़ों की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, रेंटल इतनी होती है और दूसरे कानों कान खबर भी नहीं होती, और उसके बाद आप दिखा रहे हो इतना, पर आप फिर वो लाख रुपए का जूते और 70,000 रुपए की बेल्ट के लिए इतने एक्साइटमेंट भी दिखा देते हो. तो दैट वेयर इट जस्ट ड्रॉप्स योर दैट luxurious content and luxurious influencing. That was never well, I am totally against of it. And आपको वो करके मिल क्या रहा है? बिल्कुल हो ना कि आप उसको, आपने वो ब्रांड बनाया, दैट ब्रांड इज ऑलरेडी अ वेरी बिग थिंग, एवरीवन नो अबाउट इट. तो आप खुद अपने पैसे भर के अगर ला भी रहे हो तो देयर इज नथिंग टू फ्लॉन्ट अबाउट इट. आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ है. सो वो जो अनबॉक्सिंग वाला और ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आती, बट हाँ फेक लगती है, राइट. So there are so many people, artists, like there are so many Hollywood actors I follow who've actually been working, like Elizabeth Perkins. She's a very famous actress. I follow her. You know, she's a very very famous actress. अगर आप उनके followers देखें जो शायद 33 हैं, शायद 50 हो गए होंगे. And then you see very random people on Instagram in India जिनका कोई है ही नहीं ऊपर नीचे, and they have like 289k followers, 300k, you know. And yesterday I saw this girl and she just was putting pictures in her bikini near the pool, and she has 289 and she's fat. Okay, sorry, I'm not body shaming, but you know, and she was showing every part of her body, and I was like, oh my god, this world is so fake. So आपको क्या लगता है, कौन से influencers आजकल ज़्यादा fake या overhype लगते हैं? कभी आपको ऐसी feeling हुई? मैं बताऊं, जो अभी इस समय सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, जो मिलियन ट्रिलियंस जिनके फॉलोअर्स पहुंच गए हैं, वो आपको मैक्सिमम ये लोग दिखेंगे जिन्होंने बिल्कुल रील में बिल्कुल ही गंद डाला हुआ है और कुछ भी डाल देते हैं. और लोग आउट ऑफ माइट भी वो शायद इतना फनी कंटेंट लगता है, या लोग मजाक कुछ चीज हम देखेंगे तो वो शेयर होती है, वो वायरल होती है, एंड पीपल आर सो okay with it. Like I don't know what happened to this society. क्या हो गया आजकल के खास करके जनरेशन को? They are so brainless. उनको ये नहीं पता कि उनका कितना मजाक बन रहा है. People are shaming them for all this thing, but it's okay. They're happy. At least they're getting viral for this. Yeah. So of course yes, जितना आप गंद डालोगे, जितना आप नंग डालोगे, उतना ही आपको फेम मिलेगा. So what about those influencers जो अपनी लाइफ को हमेशा रोजी दिखाते हैं, bed of roses, so perfect, oh my god I'm here now, and पीछे आपको पता है कि उनकी लाइफ ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. पति पत्नी एक दूसरे से बात भी नहीं करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बात भी नहीं करते. But don't you think that's giving our audience a very wrong expectation of what it is
which we call reality. डेफिनेटली एंड जितने ये लवी डबी बनते हैं ना अंदर उन्हीं के घर में ज़्यादा. अब मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है. वी हैव 2 ब्यूटीफुल किड्स, वी डिड एवरीथिंग टुगेदर. हमने एक पूरी जर्नी साथ में करी है. बट माई हस्बैंड और मेरी वी हार्डली हैड अ पिक्चर्स. व्हाई? बिकॉज ही सेड आई डोंट नीड टू शो टू द पीपल दैट वी आर लवी डबी. वी नेवर इवन हैव एनी पिक्चर टुगेदर. वो मुझे किस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. और जितना हम सुनते हैं देखते हैं ना कि ये जो लवी डबी है उनका कुछ बैकग्राउंड कुछ और ही चल रहा होता है. तो ऑफ कोर्स यस. और लेकिन आजकल सब बहुत समझदार है, बहुत सियाने हैं. सबको पता है कि ये जो दिखा रहे हैं वो चीज़ नहीं होती. ऑफ कोर्स यस. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन, ये जो कपल्स होते हैं ना उसमें जो लेडीज होती है दे आर मोर, आई मस्ट से दे आर मोर सुपीरियर देन बॉयज. Yeah, because honestly, my husband is into business. He never indulged with me in making reels. He said, I have many other things. He said, I have many other things to do, Shikha. You keep this thing with you. You enjoy doing this. I have many other important things to look after rather than this stupidity of yours. He take it as a stupidity, to be very honest with you. So, of course, yes, अब उनको क्या फायदा होता है husband wife को? वाइफ अच्छा कमा रही है, वाइफ को अच्छा नाम हो रहा है. वाइफ के साथ साथ अगर ये सब मिलके अगर वो एक फैमिली कंटेंट बना रहे हैं एंड दे आर अर्निंग गुड, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन डूइंग दैट. बट ऑफ कोर्स वहां पे भी वो बिजनेस ही चल रहा है. बिल्कुल, वो भी बिजनेस ही चल रहा है. वो जो दिखावा चल रहा है, किसी चल रही है, पपी चल रही है, वो सब बिजनेस है. सो यही बिजनेस के लिए, व्हेन वी अर्निंग प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडोर्स कर रहे हैं. जैसे कि फ्री में किसी ओके आई गॉट दिस, इज वेरी नाइस, माई स्किन इज ग्लोइंग एंड एवरीथिंग विदाउट एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उन्होंने अपने पे शायद उस रील के लिए ट्राई किया हो, बट दे डोंट एक्चुअली नो व्हाट द एंड रिजल्ट इज. लाइक yesterday I saw a very dear friend's post. She's like, oh my god, don't believe everything you see on Insta. मैंने भी इन्फ्लुएंस करके 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे और पूरी रात मेरे ब्रेकआउट हो गए. It doesn't suit, you know what I mean? Different experiences. तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आर एक्सप्लॉइटिंग ऑडियंस जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग मनी विदाउट एक्चुअली ट्राइंग आउट द प्रोडक्ट? राइट. नहीं, अब इसकी भी 2 पहलू हैं. अगर कोई मुझे लगता है कि ठीक है, हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता. अगर एक अच्छा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो और अगर एक चीप प्रोडक्ट जो कि आपको वही चीज़ वही काम दे रहा है उसको रिकमेंड करने में कोई हार्म नहीं है. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड डियोर का या शिनेल का या फिर नार्स का. ऑब्वियसली सबका एक अपनी पॉकेट अलाउंस होती है. सो बट व्हाट आई सॉ, अभी एक दिन पहले बोलेंगे दिस इज माई फेवरेट थिंग, दिस इज आई ऑलवेज अप्लाई. थोड़ी देर में बोलेंगे अनदर दूसरा ब्रांड, दिस इज माई फेवरेट थिंग आई ऑलवेज अप्लाई. दे थिंक द पीपल हु आर वाचिंग यू दे आर फूल और व्हाट. सो वहां जाके क्या होता है, लोग जो आपके जो फॉलोअर्स है, जो आपको व्यूअर्स है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली विच प्रोडक्ट इज गुड, विच इज नॉट गुड, ऑन विच टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट. वो फिर आप गलत करते हो. अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, अगेन शायद मैं अगेन आई थिंक आई एम नॉट हेयर टू, मैं यहाँ पे कुछ फ्रॉड नहीं करी कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है. पैसे से प्यार किसको नहीं होता. बट मैं बहुत स्टबन हूँ अपने इस चीज़ को लेके कि अगर जो चीज़ मैं नहीं कर रही, अगर मैं ये चीज़ नहीं खा रही तो मैं नहीं बताऊंगी कि तुम खाओ. अगर मैं ये चीज़ यूज़ नहीं कर रही तो मैं नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ तुम भी करो. कल को आप मुझसे सुनकर वो चीज़ यूज़ कर लेते हो या कुछ भी उसको अडेप्ट कर लेते हो और कोई कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली यू विल कम टू मी एंड क्वेश्चन मी कि यार हमने शिखा मैम आपको देख के ये चीज़ करी थी, हमारे साथ तो ये हो गया. सो मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ती. मैं बहुत अलग हूँ. पीछे मैंने शुरू करा था एक ऐसी कमेटी बनी है, आई डोंट वांट टू नेम हियर. तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स आते थे और लोग डालते थे. एवरी इन्फ्लुएंसर, हर इन्फ्लुएंसर वही डालता रहता था. तो वो पता लग जाता है कि अभी इसके ऊपर सेल लगी हुई है, इसके ऊपर डिस्काउंट है, इससे इसका कमीशन अच्छा बन रहा है. तो वो समझ आ जाता है लोगों को. एंड सो मतलब इसलिए मैंने थोड़ा अपने आप को इस चीज़ से साइड कर लिया. So Shikha, a lot of things are positive about being on social media, but a lot of things are negative as well. There's a lot of trolling, there are a lot of negative comments. Even strongest से strongest बंदा भी ये कह दे कि oh my god, I'm not affected by it. ऐसा नहीं होता. बहुत सारे लोग are affected by it. So आपने क्या सामना किया है about negative comments and especially trolling, and how has it impacted your mental health? Initially, yes. When I started, of course, people, I won't say openly कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया, but I used to, वाया वो बात आ जाती थी कि यार उसने कल कैसे पोस्ट कर लेती है, how can she post that thing, हाँ उसी में इतना कॉन्फिडेंस है. तो ये चीज़ मैंने सुनी, बट आई लेट इट, आई ओवरशैडोड इट. आई वाज लाइक ठीक है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और
मैं ये उनके लिए नहीं कर रही, जो वो 4 लोग मुझे देख रहे हैं. एंड यू नो व्हाट, द बिगेस्ट सपोर्टर्स आर द स्ट्रेंजर्स. They support you. The people who knows you, you hardly get any बहुत रेयर होंगे और बहुत ही ट्रू, या मेरे को लगेगा कि वो बड़े अच्छे लोग हैं जो आगे आके आपको अप्रिशिएट करते हैं फॉर व्हाट यू आर, एंड दे कम अहेड एंड दे कम यू नो आपके फेस पे आके इस चीज़ के लिए बोलते हैं यार तू अच्छा करती है, आई लाइक इट एंड यू हैव दैट थिंग, यू शुड कंटिन्यू विद दिस. बट और बड़ी बार तो ऐसा होता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, माई हस्बैंड वॉज नेवर माई चीयर लीडर. he never supports me. He always says कि मत क्या करिए सब, because he never want to be into limelight. And now what happened, whenever he goes somewhere, people know him through me. अरे आप तो शिखा के हस्बैंड हो, आप तो शिखा के हस्बैंड हो. And sometimes he laughs at me. It was like किसी भी लड़की को हाय हेलो करने निकलता हूँ, वो बोलती है आप तो शिखा गुलाटी के हस्बैंड हो. कह रहा मैं तो किसी से हाय हेलो भी नहीं कर सकता डर के बारे की. You never know how it travel and comes to you that your husband is talking to me like in a very friendly manner also. तो या ऑब्वियसली किया, लोगों ने बड़ा डिस्करेज करने की कोशिश करी, बट मैंने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं. सो एक ऐसा ट्रेंड सोशल मीडिया का जो शिखा बोलती है अपने ऑडियंस को कि बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, कोई ऐसा ट्रेंड सोशल मीडिया का, कोई ऐसा ट्रेंड, इट हार्डली मैटर्स बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे लगता है इफ समवन गॉट एनी इनवाइट or if someone doesn't get any invite, I don't know how it influence that. I mean how कैसे आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है. अगर किसी ने आपको इनवाइट करा या किसी ने आपको इनवाइट नहीं करा, लोग इस चीज़ को इतना दिल से लगा लेते हैं कि मैं यहाँ पे इनवाइटेड क्यों नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया गया. तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा. और दूसरा ट्रेंड मुझे बड़ा अजीब लगता है, समवन इज़ ठीक है, आप एक फ्रेंड के, आप एक अच्छे फ्रेंड हो, आप सामने वाले के वेल विशर हो, आपको उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए. बट पीपल अप्रोच यू व्हेन दे हैव सम इवेंट लाइंड अप, they want you as a crowd to be there, and when you do something like that, they never appear, they never come there for any support. So I found this thing very sharp. मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़. मुझे लगता है कि बड़े आप वो हो जाते हो. So आजकल everyone wants to be an influencer, you know, इतना competition आता जा रहा है. Every day you see someone popping up and saying that oh my god I'm an influencer, मेरे इतने followers हैं, यहाँ फोटो लग गई, वहाँ फोटो लग गई. सो एनी एडवाइस यू वुड वांट टू गिव टू द ऑडियंस जो अब भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस द कैमरा, यू कैन बी इन्फ्लुएंसर. बिकॉज आई रियली थिंक कि फ्यूचर में थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट आने वाला आएगा, 100% आएगा. क्यों इतना गंद हो गया है, हर तरीके के लोग अपने आप को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं. कुछ भी डालते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे मुंह बनाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, बोलते हैं वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल. हाउ, पहले बताओ तो सही आपने इन्फ्लुएंस क्या किया. लाइक इफ यू टेक अ पिक्चर एंड आपने शीशे का खड़े होकर पिक्चर ले ली, तो यू आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग, यू आर जस्ट टेकिंग इट फॉर योर सेल्फ. हाउ कैन बी पीपल कनेक्टेड विद यू? इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को उस चीज़ से कनेक्ट करना. आपको देखकर अगर कोई 4 लोग अच्छी चीज़ कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंसिंग बोलेंगे. तो मुझे नहीं समझ आता कि हाउ कम पीपल दे हैव दिस थिंग कि यार हम इन्फ्लुएंसर्स हैं. अभी मैंने अपने आप को क्या बोला, आई सेड आई एम अ fashion and a lifestyle influencer. When it comes to this, what I means, I make sure कि अगर मेरी बॉडी पे ये चीज़ अच्छी लग रही है मैं वो पहनूँ. अगर कोई आप कैसे लग रहे हो, मैं ये नहीं, आई एम नॉट हेयर टू बॉडी शेम एनीवन, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल दे आर सो बैड विद देयर ड्रेसिंग सेंस. इनफैक्ट अगर आपका कोई लुक कुछ है, कोई आपको लगता है कि दिस बॉडी, सी फॉर एग्जाम्पल आई थिंक आई एम लिटिल ब्रॉड, so I make sure to wear very shrinked and very, you know, that type of dress so that it makes me look little slimmer, make me look little shrinked. तो पर मैं देखती हूँ लोग कुछ भी पहन के निकल लेते हैं जस्ट इसको, और बोलते हैं this is fashion is what you wear. Okay, but follow it blindly. Yeah, follow it nicely, and वो कुछ भी ऐसे करते हैं तो obviously. So Shikha, you know, you told us in the beginning that you lost a lot of weight. Yeah. So that's how a lot of people started relating to you, because it's not easy to lose weight from someone who's never gained weight and gained weight once because of the medicines. It's not easy to lose weight. And you know, when you're used to being the perfect body, it's all the more difficult because you actually don't know what to do to lose it. I'm sure. And because I didn't know how to control my mouth. Right. You know, but सो पीपल रेजोनेटेड विद यू. सो आपके हिसाब से हेल्थ और फिटनेस का असली मतलब क्या है, एंड क्या ये सिर्फ बॉडी को फिट रखना है या मेंटल और इमोशनल वेलबींग भी उतनी ही ज़रूरी है? सी एज यू सेड कि
वेट लॉस करना मुश्किल है, ऑफ कोर्स मुश्किल है. यू नीड अ वेरी डिटर्मिन्ड एंड अ वेरी फोकस्ड माइंड फॉर दैट. और जब तक ये अंदर से नहीं आएगा, नो मैटर आप जितनी मर्जी डाइट्स ले लो, आप जितने वो वापस आ जाएगा, वो वापस आ जाएगा. ये आपको खुद से. और सबसे बड़ी बात, डाइट 1 महीना 2 महीना या 3 महीने का खेल नहीं है. यू हैव टू मेक योर लाइफ स्टाइल लाइक दिस. आपको अपने पूरे लाइफ स्टाइल को उस तरीके से करना पड़ता है. वेट लॉस आप कर लोगे 1 महीना 2 महीने में, बट उसकी मेंटेनेंस तभी रहेगी व्हेन यू बी वेरी स्टिक टूवर्ड्स योर लाइफ स्टाइल. आई लिटरली चेंज्ड माई लाइफ स्टाइल फॉर दिस थिंग. मैंने इतनी प्रायोरिटी दी है इस चीज़ को. वाई? बिकॉज आई myself experienced this. Yeah. This I reverse my age. It has to be a lifestyle change. And I आप reversed- डॉक्टर की बात 1 हफ्ता सुन लोगे, 2 हफ्ता सुन लोगे, कितनी देर सुन लोगे? कितनी देर सुन लोगे जब तक आप खुद से नहीं करोगे. एंड मेरे को खुद को अपनी, मैं पुरानी पिक्चर्स देखती हूँ और अब देखती हूँ तो मुझे लगता है रिवर्स्ड, मतलब मैं आई एम एजिंग बैकवर्ड्स. Yeah, how nice. So this is exactly, मतलब I'll show you pictures afterwards. You will yourself say. तो अब मुझे पता है कि what is clean eating is all about. And secondly, I don't know why women are so scared to lift weights. Why they are so scared? मैंने देखा most of the time what happen, girls जाती हैं, सारी लड़कियां आपको कार्डियो सेशन में मिलेंगी, ट्रेडमिल कर रही हैं, साइकिलिंग They कर don't रही हैं. understand that weightlifting is much more It's effective. much more effective. Strength training, and it doesn't makes you look masculine. It makes you look more feminine, more curvy, more sexier. So everyone should go for a strength. So these are the common mistakes, but a lot of people have these misconceptions about protein intake. What do you have to say about that? I don't know how can people flex having drinks and vodkas, but whenever you come and whenever you saw anyone taking protein, ये तो बहुत नुकसान देता है बॉडी को. मतलब तुम शराब पी रहे हो, तुम हुक्का कर रहे हो, वो नुकसान नहीं दे रहा. जो बंदा प्रोटीन ले रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है क्लीन ईटिंग की तरफ. एंड प्रोटीन इज सच अ इम्पॉर्टेंट सोर्स, यू नो, योर मसल्स. एंड आफ्टर 30 की एज के बाद आपकी मसल अपने आप थोड़ा सा वो हो जाता है. एंड विद एज Lot of changes. Exactly. So of course we need a good source of protein. That's why everywhere, whenever you open Instagram, in every podcast, it might be in every reels, you will see this. You have to take protein with your every meal. Why? It also helps you for weight loss. So Shikha, a lot of times, you know, I feel there, you know, काफ़ी लोग इतनी टिप्स देते रहते हैं, यू नो, एवरी डायरेक्शन, लाइक आप ये लगा लो, आप ये पी लो, आप ये खा लो, ऐसे पतले होते हैं, ऐसे मोटे होते हैं, ऐसे स्किन अच्छी होगी. एंड यू नो दे एक्चुअली डोंट हैव एनी रियल मेरिट. यू नो, कहाँ से सीखा, क्या किया, आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या आप डॉक्टर थे, क्या आप मॉडल रह चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस था, एक्टर हैं, बॉलीवुड है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं. बहुत सारे लोगों का कोई मेरिट नहीं है बट इतनी एडवाइस देते रहते हैं, यू नो. तो ऐसे कॉमन मिथ्स जो आपने सुने हो, जो आप डिबंक करना चाहते हो ऑडियंस के लिए, और लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं टू लूज वेट. आजकल आपने देखा ही है, सबसे पॉपुलर है ओजेम्पिक, मंजारो, यू नो, एवरीवनस लाइक वी आर डन विद डाइटिंग, हमें बस वेट लूज करना है एट एनी कॉस्ट. अभी इंडिया में ऑफिशियली आया भी नहीं है, एंड आई नो सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर पेइंग 1 लाख, ये वो Unofficially बहुत ने लगवा भी लिया. एग्जैक्टली. हाँ. तो आपको क्या लगता है कि what about these myths of losing weight suddenly, crash dieting, Ozempic? Yes, right. Every other person on Instagram teacher बना हुआ है सब. जिसके पास जाओ उसके पास अपने नुस्खे हैं. कोई अपना घर पे प्रोटीन बनवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये है, ये चल रहा है ऑब्वियसली. बट मुझे ऐसा लगता है कि और ये देखो, जिसको नॉलेज है, और बहुत सारे लोग खुद इतने मोटे हैं और वो कह रहे हैं आपको वेट लूज कैसे करना है, वो भी एडवाइस दे रहे हैं. तो मुझे कभी कभी नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है. राइट. और कभी कभी आप देखना कि लड़कियां कुछ कितनी पतली होंगी बट वो बोलेंगे जानबूझ के, चालोगे मेरे यार हम बहुत मोटे हो गए, जस्ट टू मेक यू कॉन्शियस कि यू माइट बी मोटा. सो या, तो मैं वही बता रही That's their way of fetching a compliment. नहीं यार, I haven't lost any weight. राइट. एंड इट्स वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी, है ना. कहीं आप चले जाओ गेट टुगेदर्स पे तो यही हो रहा होता है. सो या, बैक टू द क्वेश्चन. अभी एवरीवन इज अ टीचर ऑन इंस्टाग्राम, और मुझे लगता है कि देखो, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, आप जब तक उस चीज़ का रिजल्ट खुद, नॉलेज होना इट्स अदर थिंग, बट उसको इम्प्लीमेंट करके उसका फ़ायदा ढूंढ कर, और आपको ये नहीं कि 4 लोगों को 5 लोगों पे, आपको कम से कम यू हैव टू हैव अ यू नो अ प्रूवन
थ्योरी बिहाइंड दैट कि हाँ दिस इज व्हाट प्रूवन और ये चीज़ होती है, इस चीज़ के है, तो आप वो फैक्ट्स पोर्ट्रे करते हो इन फ्रंट ऑफ पीपल, इट्स ओके, इट्स फाइन, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. इनफैक्ट मी ऑलवेज ट्राई टू मेक अवेयर पीपल दैट सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ कोर्स एट सम एज हमारी बॉडी में वो चीज़ बननी बंद हो जाती है. वी हैव टू मेक श्योर कि हमको ऊपर से भी और करना है. बट मैंने कितनी बार देखी कि कुछ ऐसी जो अपने आप को सर्टिफाइड डाइटिशियंस बोलती हैं, बट दे बोलती हैं या बोलते हैं, बट दे themselves are not aware that what they are portraying to the people is wrong information. It's a half cooked, uncooked knowledge they and are it's so doing. dangerous. Exactly, they were very dangerous. Limited Why? knowledge is dangerous. It's more dangerous. Exactly. It's better to shut and Exactly. don't utter a word if you don't know the real thing. वो ज़्यादा better रहता है. But सबको इस समय गुरु बनना है, तो सबको गुरु बनना है कि मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं भी इस रेस में सबसे आगे रहूँगा. तो ये गलत है. मुझे लगता है अगर आप किसी चीज़ के लिए आप उसको वेरीफाइड नहीं कर सकते, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग दैट थिंग एंड दैट टू ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर 100 and 1000 and millions of people are watching you. That's really very risky and yeah. So Shikha, you know a lot of people like initially और अभी बहुत लोग सोचते हैं, oh my god, modeling is so much fun, like अब क्या ही करना पड़ता है, you know, you just I need to look glamorous and pose and you just look perfect all the time. ऐसा नहीं है. So मुझे ये लगता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लाइफ तो मुझसे भी ज़्यादा टफ है, बिकॉज यू नो हमारे पास पूरी टीम होती थी. सो हमें एक्चुअली खुद अच्छा लगना होता था, पोस्ट करना होता, दैट्स आवर वर्क. बट यू नो कंटेंट क्रिएटर वो सब डिफरेंट होता है. आजकल एवरीवन एक ही बंदा है, वो अपनी वीडियो भी बना रहा है, कंटेंट क्रिएशन. सो आर देयर डेज जब आपको उठ के लगता है कि यार मैं सेल्फ केयर करूँ, कंटेंट क्रिएशन करूँ, आज मुझे तो बेड में से ही निकलने का दिल नहीं है. सो हाउ डू यू डील विद दोज डेज? I'm not dealing with any of these things. हाँ. Why? Because I am a very mast mola and I am very ठीक है, I have a team with me. Sometimes when I required, I ask them to do some editing thing for me, because of course it's a very time consuming thing and of course at the same time you get frustrated sometimes कि यार अभी ये सही करा था फिर कुछ गलत हो गया. तो मुझे और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को लाइंड अप है कुछ हाउस होल्ड चीज़ें या माई फैमिली या माई किड्स, अगर मैं उनको साइड करके इस चीज़ पे ज़्यादा गौर कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी इस चीज़ से डिस्टर्ब होती हूँ. So I never indulge, as I said earlier, that I never do anything अभी till date. अभी तक तो मैं कुछ बहुत professionally नहीं कर रही. I'm doing just for fun and it's getting her own way and it's going so well. So thanks to God for that. And of course yes, I think ठीक है, this is what like all I can say कि मैं इतना efforts नहीं डालती. मैं बड़ी चिल पिल रहती हूँ when it comes to this thing. जैसा हाँ अगर डाल दिया ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है, अब मुझे अच्छी लग रही है ना तो मैं पोस्ट कर देती हूँ. So Shikha, you told us कि आपके husband इतने supportive नहीं है, मेरे भी नहीं है actually. He loves to see me work for sure. He supports all of that. He loves to see me being an independent woman. He says कि this is one of the reasons I wanted to marry you, because you were independent at that age and earning your own money, everything. But he's very camera shy. वो बोलते मेरे को मत पार्ट बनाओ अपनी रील्स का, तुम्हें जो करना है करो. So how did that happen for you and did it affect your relationship? No, it doesn't affect my relationship, but of course it affects my contents. I have so many things in my mind. I so much can do. I want to do so much, but he never participates. And of course, yes, at a times. Like we were out for some dinner, might be some good dinner together, or we are out for some vacation, and I have that thing in my mind that I get ready, I have to make a reel. Yes. I have to do something. मैंने कपड़ा पहना है, अभी मैंने तैयार हुई हूँ, मुझे कपड़े पहने, यार मैं कुछ तो कर लूँ, पिक्चर खींचाओ. लोग कितनी पिक्चर खिंचाते हैं, and I'm like, dude, there's this very dear friend of mine, and you know उसकी इतनी अच्छी पिक्चर्स बताइए, इस एंगल से उस एंगल से. I'm like, ये कौन खींच रहा है? और मैं तो स्पेशली फॉरवर्ड करती हूँ मेरे हस्बैंड. I'm like क्या? तो मैं फॉरवर्ड करती हूँ कि देखना वो, और फिर उसको ऐसे बोलती हूँ देखो वो वेकेशन पे गए, इट्स वर्थ इट गोइंग टू द वेकेशन. बट ही वाज लाइक यू शुड एंजॉय द मोमेंट, यू शुड बेटर स्टे इन दैट मोमेंट. आप तू क्या करती है शिखा, तू इस चीजों में लगी रहती हो, तो उस चीज को उसको कैप्चर करने के वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हो आप, रियल एंजॉय. सो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और दैट्स व्हाट थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हमारा इस चक्कर में हो जाता है कि इंजॉय कर, जहाँ ये फैमिली के साथ इंजॉय कर, ये बात में हो जाएगा. बट मुझे होता है नहीं यार, दिस इज अब इंस्टाग्राम इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है लाइफ में कि यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. इट्स एडिक्शन नाउ, ऑफ कोर्स. यस, एब्सोल्युटली. सो नाउ हम एक बहुत ही मसाला क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे. सो आजकल एक शुगर डैडी का ट्रेंड बहुत चल रहा है, हर स्पेशली इंस्टा पे. आई विल टेल यू, हर एक, ये कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम श्योर ये सारी लड़कियों का एक्सपीरियंस है, और किसी को भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐश्वर्या राय, बिकॉज
all the girls are getting these messages from so many people around the world कि वो हम उनको आपका sugar daddy बनना है. तो ये trend, ये culture का आपके like what do you think about this? Every girl is getting the random messages on Yes, Instagram. yes. हर बंदे के पास और वो ये और सबके पास आपको वही कॉमन लड़के मिलेंगे घूमते फिरते हुए वही कॉमन मिलेंगे आपको सारे सारों पे वही likes हैं. but you know what, sometimes I feel very bad. Why? Because I don't know why. Again, आप लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस कर दिया लोगों को फॉर द ब्रांडेड बैग्स, फॉर द गुड लुक होटल्स, बिग होटल्स में That dinners people हो are रहे हैं. wanting it at any cost. The people, the girls are wanted that in any cost. मतलब they don't even think. पहले ये चीज़ें नहीं थी. पहले बहुत अलग था. मतलब एक extra marital affair, it's a big thing. Like Yeah. people never shared. Now every other family, मतलब हर रोज एक नई कहानी सुनने को मिलती है. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ. Correct. और सिर्फ एक बैग के लिए या एक अच्छी आउटिंग के लिए या एक नाइट क्लब में एक शैम्पेन पॉपअप करने के लिए लोग शुगर डैडीज रख लेते हैं. I Yeah. feel that's really that's annoying. That's where our generation is going. It's definitely not good. It's better अगर इतने शौक है तो कुछ करो, आप काम करो, आप अपने लिए इतने इतना बनो कि आप खुद के लिए वो चीज़ ले सको. अगर इतने बड़े बड़े शौक हैं, Correct. ठीक है, बट सबकी अपनी मेंटालिटी, अपनी सोच है, अपना ब्रॉटअप है. आई बिलीव सो इट्स वेरी. So, शिखा क्या लगता है इन मॉडर्न रिलेशनशिप्स में सब कुछ अब इमोशनल कनेक्ट थोड़ा कम हो गया है. एवरीवन इज लुकिंग फॉर द सेक्सुअल कनेक्ट, फिजिकल अट्रैक्शन. एंड अभी हमने शुगर डैडी की बात की तो लोगों को और दो विमेन आर लाइक के वी आर रेडी टू गिव यू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू गिव अस what we need. आप शादीशुदा हो नहीं हो, डिवोर्स हो नहीं हो, doesn't matter. आप मुझे एक पेंट हाउस दे दो, मेरे बैग्स और मेरी चीजों का आप ध्यान रखो, we are there for you. Right. So this whole culture. Daily I used to hear all these gossips, all these things traveling कि उसने उसको छोड़ दिया because उसके पास शायद ज़्यादा पैसा था. वो और पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो समझ नहीं आता कि अगर और पता है ये सब क्यों हो रहा है. ये इन्हीं सो कॉल इन्फ्लुएंसिंग की वजह से हो रहा है. जो लोग ये दिखाते हैं, पीपल गेट अट्रैक्टेड, बट ट्रस्ट मी there's nothing to be get attracted on. Like इसमें इतना attraction कुछ वाली बात है नहीं. And I don't know why, but yeah, it's their brought up. I don't know what mentality that people have in their mind. वो शायद उस चीज़ को एक materialistic चीज़ों को इतना importance दे देते हैं कि वो अपनी खुद की एक identification और ये सब खराब कर देते हैं. So yeah, their choice. So Shikha, you told us कि आपके husband काफ़ी shy हैं, but he still supports you. But आपकी family में ये question मेरा initially रह गया. आपकी family में आपको क्या लगता है किसने आपको inspire किया? आपके parents ने, and who supports you the most till My now? father is always my cheerleader, and he's always my hero. He's such a charming. He has a charming personality. Any best advice he's given you till now? Be बिंदास, do what you want to do. मतलब वो खुद भी बड़े बिंदास हैं, Yeah. बड़े लाइवली से हैं, बड़े cheerful आदमी हैं, और उन्होंने मुझे भी ये चीज़ सिखाई है कि तेरे को जो मन है, जो करना है कर. ठीक है, you have such some boundaries which you make sure कि वो cross नहीं होनी चाहिए. You have a family, you have a good family in fact, and you make sure this thing कि आप अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा घूमो, अच्छे से अच्छा खाओ, but अपनी उस boundaries के अंदर. अगेन दैट सेम थिंग. इट डजंट कि मुझे किसी चीज़ से कुछ मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उस चीज़ के लिए पागल हो जाऊंगी या भूल जाऊंगी कि मुझे what is my characteristics all about and how I have to. My brought up was like this कि मुझे पता है कि मुझे इतने ही दायरे में रहना है, और उसके साथ मैं पूरा मस्ती भी करती हूँ, पूरा enjoy करती हूँ. I have a great time. And yeah, and my father looks so young. Oh, really? मुझे ये जो health वाला और जो ये young दिखने वाला जो वो कहते हैं ना चस्का चढ़ा है, वो मेरे पापा से ही चढ़ा है. How nice. Yeah, he looks very young, very dashing. He तो takes care of himself. शिखा हमारे ऑडियंस को भी बताओ कि कैसे यंग रहना है एंड कैसे एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बनने का जो भी आप कितने साल से ये कर रही है, एक एडवाइस दीजिए हमारे ऑडियंसेस को कि Right, yeah. which direction whoever is aspiring to be an See, when influencer. it comes to influencing, if you are confident enough, anyone can be an influencer nowadays, but make sure कि जो भी आपकी content है वो actually influencing हो. And when it comes to the health and the young रहना, तो of course yes, I have few tips. Firstly, सारे जो ये प्रॉब्लम है ना गट से होती है, तो मेक श्योर कि आप अपने गट को बड़ा क्लीन रखो. एंड फॉर दैट प्लीज अवॉइड वाइट शुगर, all the white things, either it's white sugar, it's maida,
It's your lactose जिसमें होता है which is your milk and थोड़ा white products को जितना avoid करोगे better Dairy. रहेगा. या dairy of course. तो उस चीज़ को थोड़ा avoid करो so बहुत चीज़ें आपकी better हो जाएगी life में. So this is the main tip and of course please add proteins in your all जितने भी meals आप लेते हो make sure कि आप उसमें protein ज़रूर डालो. It's very good for you. It's very Correct. helpful for you. So now, Shikha, we've come to the last but not the least segment. It's a very fun round. It's rapid fire and it's very inspired by Coffee with Karan, which I need Wow. right now desperately, a Yes. coffee in the evening. Right. So rapid fire, you just don't have to think, just whatever comes to your mind, shoot. So what's your go-to comfort food? दाल चावल. Nice. घर के दाल चावल. Your favorite movie of all time? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम आई एम मोर ऑफ पेट्रियोटिक तो बॉर्डर मुझे बहुत पसंद है. Oh, very nice. One thing on your bucket list you're dying to tick off. That must be very controversial maybe, but I want to travel alone with not even with my friends. मुझे solo traveling का बहुत मन है, which my husband is not allowing me. Oh, Yeah. that a lot of people are doing nowadays. Tea or coffee? Tea. What's the craziest thing you've ever done? You want to share in front of the camera? Craziest thing I've ever done. For fun. See, I don't drink much. I think जितनी भी craziness है वो पीने के बाद आती है, तो इसलिए मेरे को ओहो। सूफी में तो मैंने कुछ crazy ऐसा करा ही नहीं. So एक ऐसी चीज जिसके बिना आप नहीं रह सकती, नहीं जी नहीं सकती. Yeah. Gymming. I love to do gym. मैं gym नहीं छोड़ सकती. I can leave party for my gym thing. And of course मुझे अच्छा I'm a foodie. मेरे को अच्छा खाना पसंद है. Non-veg. I'm a non-veg lover. I can't. My daughter, my daughter, she मतलब उसने non-veg खाना छोड़ दिया. She gets so influenced from the Instagram Yes, reels yes. that she's leave it. Lot of मैं people, नहीं yeah. करा. I So can't do dream vacation destination. Touchwood, I travel a half of the world almost, but मुझे अभी तक जापान नहीं गई. I want to go to Japan. I haven't been to Japan. as Yeah, well. yeah. I'm going to a restaurant called Japanico, but I haven't been to Japan. Haven't been to Japan, आपका yeah. favorite makeup product जिसके बिना आप नहीं रह सकते? Tints. Nowadays, tints. Yeah, I love applying the tints. It give a very, cute red cheeks. And, Nice, like a tint, blush tint. Yeah, Okay. blush tints, yeah. अगर अपनी vibe को एक word में describe करना हो तो वो क्या होगा? अपनी vibe को. A very friendly, over friendly. And a very inviting. Like I love making friends. I always very welcoming. Yeah, I'm very welcoming towards new people. I love to connect with the new people. So Great. So romantic date या chill night with friends? What do you want to choose? chill night with friends. Awesome. Yeah. So thank you so much, Shikha. That was lovely having you. pleasure. You gave It's us so pleasure much to be masala and amazing information about what you do, your lifestyle, the Thank health you so tips much. which you shared with our audiences. Absolutely loved having you. Thank you. This is your host Amanpreet Wahi saying a big bye to all you lovely audiences on Edge Talks on our podcast. Please follow and subscribe. Mwah.